بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسی حقیقت اور دل دہلا دینے والا واقعہ سنائیں گے کہ ایک نیک لڑکی جو حافظ قرآن تھی، لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے گزر بسر کرتی تھی، مرنے کے بعد وہ کیوں عذاب کا شکار ہوئی۔ اس کی قبر کا حال جان کر ہر کوئی دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ بڑی نیک تھی۔ لوگوں کے اصرار پر جب اس کی ماں نے اس لڑکی کی حقیقت بتائی تو یہ جان کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ گزارش یہی ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ بہت ساری عورتیں کپڑے سلائی کرتے وقت ایسی غلطیاں کرتی ہیں۔ آج کی کہانی بڑی ہی سبق آموز اور خاص کر ان عورتوں اور مردوں کے لیے ہے جو سلائی کڑھائی جیسا کام کرتے ہیں، کیونکہ انجانے میں وہ ایسا گناہ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بہت سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کسی شہر کے دور دراز علاقے میں نفیسہ نام کی لڑکی اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ نفیسہ کی ماں نے نفیسہ کو قرآن پاک کا حفظ کروایا اور اسکول کی تعلیم بھی دلوائی اور سلائی بھی سکھائی، تاکہ یہ لوگوں کے کپڑے وغیرہ سلائی کر کے اور کچھ نہیں تو گھر کا کھانا پینا ہی چل سکے، یعنی کہ ان کی ماں بیٹی کی 2 وقت کی روٹی چل سکے۔ نفیسہ بہت ہی محنتی لڑکی تھی۔ اس کے کچھ اصول تھے جس سے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ ابھی بھی کتنی دیر سے اس کے پاس 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، بار بار کپڑے سلائی کے لیے اصرار کیے جا رہی تھی، لیکن نفیسہ نے 2 ٹوک لفظوں میں اسے جواب دے دیا کہ وہ ان کے کپڑے نہیں سی سکتی۔ وہ عورتیں پھر نفیسہ کی منتیں کرنے لگیں، نفیسہ دیکھو، انکار نہ کرو، تم سب کے کپڑے سلائی کرتی ہو اور بہت اچھی طرح کرتی ہو، ہمارے کپڑے بھی سل دو، بہت مہنگے کپڑے خریدے ہیں ہم نے کسی ایسی درجی کو دے کر، ہم اپنے کپڑے خراب نہیں کروانا چاہتی۔ تم تو جانتی ہو تمام گلی محلوں کی عورتیں تم سے ہی کپڑے سلواتی ہیں، تم کم دام میں بہت اچھی سلائی کر کے دیتی ہو اور کپڑے پہننے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ نفیسہ بولی، لیکن جیسا ڈیزائن آپ لوگ بول رہی ہو اس طرح کے کپڑے میں نہیں سلتی۔ ان کپڑوں میں پورے بازو نظر آئیں گے، سلوار کا ڈیزائن بھی ایسا ہوگا کہ پنڈلیوں سے اوپر پاؤں دکھیں گے، توبہ توبہ، میں ایسے کپڑے کیسے سل سکتی ہوں۔ نفیسہ نے یہ بول کر صاف انکار کر دیا۔ وہ عورتیں کہنے لگی، ہم تمہیں 500 سلائی دینے کے بجائے 1000 جوڑے کی سلائی دیں گی، ہمیں تمہارے ہاتھ کی سلائی بہت پسند ہے، تم بہت ہی حفاظت سے کام کرتی ہو۔ نفیسہ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، نہیں باجی، میں سلائی نہیں کروں گی، اور پھر وہ اپنے کچن خانے کی طرف چلی گئی۔ نفیسہ کی اماں نے شرمندگی سے ان دونوں عورتوں سے معذرت کی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی تھوڑی پردے دار ہے، وہ اس لیے اس طرح کے کپڑے نہیں سیتی۔ دونوں عورتوں کے جانے کے بعد نفیسہ کی اماں نے نفیسہ سے کہا، بیٹی تم کیوں لگی روزی کو دھکا دیتی ہو، آخر تم کپڑے سلائی کیوں نہیں کرنا چاہتی، کوئی 4 پیسے آ جاتے۔ نفیسہ بولی، اماں میں ایسے ہی بے حیائی کے کپڑے کسی کو سل کر نہیں دے سکتی۔ اتنا کہہ کر نفیسہ اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے وضو کرنے چلی گئی اور اس کی اماں خاموش ہو گئی۔ وہ جب نفیسہ سے کوئی بات کرتی تو وہ اسی طرح کے جواب دیتی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ اس کی ماں بھی لوگوں کے گھروں کا کام کر کے آتی اور بیٹی گھر پر محنت کرتی تھی۔ ایسا کرتے کرتے نفیسہ نے اپنے پورے دہیج کا سامان بنا لیا۔ پھر نفیسہ کی ماں نے اچھا لڑکا دیکھ کر نفیسہ کی شادی کر دی۔ وہ لڑکا غریب ضرور تھا، لیکن نفیسہ کی بہت عزت کیا کرتا تھا۔ نفیسہ کی ماں نے شادی طے کرتے وقت یہ کہا تھا کہ میرا تو کوئی سہارا نہیں میری بیٹی کے علاوہ، اس لیے میں اپنی بیٹی اور داماد کو اپنے گھر پر ہی رکھوں گی۔ وہ لوگ بھی مان گئے۔ اس طرح نفیسہ شادی کے بعد اپنی ہی ماں کے گھر دوبارہ سے رہنے لگی۔ اس کا شوہر جتنے بھی پیسے کماتا، لیکن گھر کا گزارا پھر بھی مشکل تھا۔ نفیسہ کو کپڑے سلائی کرنے ہی پڑتے تھے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ نفیسہ پریگننٹ ہو گئی۔ اب نفیسہ سے کپڑے سلائی کرنا بڑے مشکل ہو رہے تھے۔ ادھر نفیسہ کو یہ خوشخبری ملی اور ادھر سے شوہر نے گھر آ کر بتایا اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ نفیسہ یہ بات سن کر رونے پیٹنے لگی کہ اب میرا کیا ہوگا، میں اس حال میں بھی کپڑے سلائی کروں گی، کیا مجھے سکون نہیں مل سکتا۔ حالانکہ نفیسہ کا شوہر نفیسہ کا بہت خیال رکھتا تھا۔ جب وہ کپڑے سلائی کرنے بیٹھتی تو نفیسہ کو وہی بیٹھے چائے بھی بنا کر دیتا، کبھی کھانا بنا کر دیتا اور باہر نوکری بھی کرتا تھا۔ اب اکثر ہی نفیسہ کی اپنے شوہر کے کام کے سلسلے میں بحث ہو جاتی۔ شوہر سے وہ بدتمیزی کرنے لگتی
बदजुबानी करने लगती। जब शोहर खाना खाने बैठता तो आगे से यह कह देती, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। वो बेचारा 2 निवाले खाता और उठकर बाहर चला जाता। हालांकि वह भी रोज काम ढूंढने जाता था और यह तो अल्लाह की मर्जी थी कि उसको काम ही नहीं मिल रहा था। ऐसा करते करते आखिर वो दिन आ गया कि नफीसा के घर बेटी पैदा हुई। नफीसा का शोहर और नफीसा की माँ बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए। नफीसा का शोहर तो बच्ची की खुशी में घर घर में मिठाइयाँ बांट रहा था। इधर नफीसा के शोहर को बच्ची की खुशखबरी मिली और उधर नफीसा के शोहर का काम भी लग गया। जहाँ नफीसा के शोहर को काम मिला, वो ठेकेदार बड़ा ही सख्त मिजाज था। मजदूरों के साथ बदतमीजी से पेश आता। उसे बस काम ही प्यारा था। लोग बस मजबूरी के तहत उसके पास काम करते थे और अक्सर वो मजदूरों को गंदी गालियां भी दे दिया करता था। इधर नफीसा के घर का गुजारा मुश्किल से हो रहा था। जब बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई तो नफीसा ने फिर से अपनी सिलाई स्टार्ट कर दी ताकि उसकी बेटी का खर्च भी पूरा हो सके। जो भी औरतें कपड़े सिलवा कर ले जाती, उनके कपड़ों में से जो कपड़ा बच जाता वह औरतें उसी को दे देती। उसी कपड़े से वो अपनी बेटी के छोटे छोटे फ्रॉक सिलाई कर लेती और उसको पहनाकर इसी तरह वो गुजर बसर कर लेती। क्योंकि नफीसा के शोहर की इतनी कमाई तो है नहीं कि जिससे वो ज्यादा खर्च कर सके। बिजली का बिल और घर का सौदा सलफ ही शोहर पूरा कर सकता था। फिर एक दिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि उन लोगों के घर में जलजला सा आ गया। हुआ कुछ यूं कि नफीसा का पांव अचानक सीढ़ियों से फिसला और पहली सीढ़ी से गिरती हुई आखिरी सीढ़ी तक आ गई। उसके सर से इतना खून बह गया। नफीसा की माँ रोने चिल्लाने लगी। पूरा मोहल्ला उनके घर में इकट्ठा हो गया। जल्दी से नफीसा के शोहर को खबर कर दी गई। जुमे का दिन था और नफीसा का शोहर इसलिए आज काम पर था कि एक्स्ट्रा जो पैसे मिलेंगे मैं अपनी बच्ची के लिए खिलौने खरीदूंगा। उस दिन और कोई मजदूर वहाँ काम नहीं कर रहा था। जब नफीसा के शोहर को बीवी की ऐसी खबर मिली तो जल्दी से अंधाधुंध उसने ताले लगाए और भागकर घर वापस आ गया। चाबी उसने अपनी जेब में रख ली और जल्दी से घर आ गया। डॉक्टर के पास ले जाते नफीसा रास्ते में ही दम तोड़ गई। नफीसा के शोहर को नफीसा की बातें बहुत याद आ रही थी। वो तड़प तड़प कर रो रहा था और नफीसा की माँ भी चीख चीख कर रो रही थी। नफीसा का शोहर इसलिए भी ज्यादा रो रहा था कि उसकी मासूम सी बच्ची है, उसका क्या होगा, बिना माँ के कैसे पलेगी। अभी तो वो इतनी छोटी थी कि माँ का दूध पीती थी। यह सब सोचकर वह और भी ऊंची आवाज में रोने लग जाता। नफीसा की अचानक मौत पर हर कोई अफसोस करने लगा। कौन जानता था कि एक जवान लड़की भरी जवानी में यूं खामोशी से चली जाएगी। हर कोई नफीसा की नेकी के गुण गाया करता था। सभी जानते थे वो कितनी नेक थी, परहेजगार थी, हर किसी का ख्याल रखने वाली थी। हर कोई उसकी तारीफ में लगा हुआ था। नफीसा की माँ और शोहर का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वह दोनों गम से निढाल थे। फिर तदफीन का वक्त करीब आया और नफीसा का जनाजा पढ़ाया गया। नफीसा को करीबी कब्र में ले जाकर दफना दिया गया। उसे दफनाते वक्त उसका शोहर कब्र के अंदर उतरा था और उसी दौरान उसके जेब से वो चाबियां निकलकर कब्र के अंदर गिर गईं। जहां काम से वो ताले लगा कर आया था, उसके शोहर को इस बात का पता ही ना चला। वो घर लौट आया। शाम होते ही सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। सबके जाने के बाद घर बिल्कुल वीरान सा हो गया। नफीसा की सिलाई मशीन सामने ही रखी हुई थी, जिसे देखकर उसकी माँ बार बार रोने लग जाती, क्योंकि उसको पहले बेवा होने का दुख था और अब बेटी के चले जाने और छोटी नवासी का तन्हा रह जाने का दुख बार बार सता रहा था। नफीसा के शोहर ने नफीसा की माँ को संभाला और गोद में अपनी बच्ची को भी बैठाया हुआ था। लेकिन एक माँ को कहाँ करार आना था। जिस बेटी ने माँ का बाजू बनकर दिखाया था, वो इतनी अचानक चली गई। नफीसा की माँ को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। बस नफीसा की माँ यही बोले जा रही थी, अभी अभी तो मेरी बेटी कपड़े सिलाई कर रही थी, यह सब क्या हो गया। उसकी माँ को किसी तरह से यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी अब इस दुनिया से जा चुकी है। नफीसा की नन्ही बेटी भी बिलख बिलख कर रो रही थी और नफीसा का शोहर नहीं चाहता था कि वो अगले 2-3 दिन काम पर जाए। वो अपनी बेटी का खूब ख्याल रखना चाहता था और बीवी के गम में बहुत निढाल था। इसलिए वो मालिक को बताना चाहता था कि मैं अगले 3 दिन काम पर नहीं आऊंगा।
जैसे ही नफीसा के शौहर ने जेब को हाथ लगाया तो उसकी जेब में जो चाबियां नहीं थीं, वह सोच में पड़ गया कि यह आखिर चाबियां कहाँ चली गईं। बहुत सोचने के बाद भी उसके दिमाग में आया कि चाबियां तो उसने जेब में ही रखी थी। नफीसा की माँ भी अपने दामाद का परेशानी वाला चेहरा देख रही थी। कहने लगी, साबिर बेटा क्या बात है? तब साबिर ने अपनी सास को बताया, माँ जी जेब में चाबियां थीं, वो पता नहीं कहाँ गिर गईं, पता नहीं मस्जिद में गिर गईं या कब्रिस्तान में गिर गईं। उसी वक्त साबिर के जहन में यह बात आई कि जब वो कब्र के अंदर उतरा था उस वक्त कहीं चाबियां कब्र में तो नहीं गिर गईं। उसी सोच के आते ही वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वह ठेकेदार बहुत ही जहरीला आदमी था। उसने तो साबिर को छोड़ना नहीं था। जरा सी चाबी के गुम होते ही उसने तो उसकी जान ले लेनी थी, क्योंकि उसको इंसान से ज्यादा उनके काम की फिक्र रहती थी। अभी साबिर यही सोच ही रहा था कि ठेकेदार का फोन आ गया और उसने कहा, सुबह बंदे काम पर लगाने हैं तो मुझे अभी और इसी वक्त रातों रात चाबियां देकर जाओ, ताकि मैं बाकी के काम पर सुबह सवेरे मजदूरों को लगा सकूं। इतनी बात सुनकर साबिर का हलक सूख गया। वो यह भी ना कह सका कि चाबियां कहीं गुम हो गई हैं। उसने बस इतना ही कहा कि मैं आपको चाबियां सवेरे पहुंचा दूंगा। अब उसे रातों रात में ही चाबियां तलाश करनी थी। उसने सोच विचार करने के बाद उसने कब्रिस्तान का रुख किया। रात के 1 बज रहे थे और नफीसा की बेटी अभी नानी के पास सो रही थी। नफीसा का शौहर रात के 1 बजे ही कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसका दिल घबराहट का शिकार था। वो बहुत ज्यादा परेशान होने के साथ साथ खौफजदा भी था। इससे पहले वो कभी इतनी रात को कब्रिस्तान नहीं आया था। यह कब्रिस्तान गांव से कुछ दूरी पर था। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन यह भी मजबूरी थी। वो कीमती चाबियां थीं, उसने अपनी लापरवाही से गुम कर दी थी और इन चाबियों को तलाश करते करते वो रात के 2 बजे कब्रिस्तान पहुंच गया। 401 अजीब सी मौत की वहशत थी। नफीसा के शौहर साबिर का दिल बैठने लगा। शाम को ही उसने अपनी बीवी को जिस कब्र में दफन किया था वो उसके करीब पहुंच गया। फिर उसने पैरों की तरफ से खुदाई शुरू कर दी। उसका मकसद अपनी चाबियां का हसूल था। अभी उसने थोड़ा हिस्सा ही खोदा तो सामिर वहां पहुंच गया और गुस्से से कहने लगा, यह तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई कफन चोर हो? नफीसा के शौहर ने घबराकर टार्च अपने चेहरे की तरफ किया तो गोरखान समीर कहने लगा, तुम तो वही हो ना जिसकी बीवी का शाम में इंतकाल हुआ था। नफीसा का शौहर घबराकर कहने लगा, हाँ मैं शाम को अपनी बीवी को दफनाने आया था, लेकिन बीवी को दफनाते हुए कीमती चाबियां मेरी जेब से गिर गई हैं और वो चाबियां मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। बड़ा मेहरबानी आप ही मेरी मदद कर दो। यह सुनना था कि वो आदमी जो गोरखन था नफीसा के शौहर की मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर बहुत जल्दी अच्छी खासी कब्र खोद ली। गोरखन के साथ मिलने से नफीसा के शौहर का डर भी खत्म हो चुका था और चाबी मिलने की उम्मीद भी जाग उठी थी। कुछ ही देर बाद कब्र पूरी तरह खुल चुकी थी। जब नफीसा के शौहर ने कब्र के अंदर का मंजर देखा तो नफीसा के शौहर के होश उड़ गए। गोरखन ने दोबारा से जल्दी जल्दी कब्र में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। उसके पसीने छूट रहे थे। वो कहने लगा, तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी जो इसकी कब्र में ऐसा अजाब हो रहा है। नफीसा के शौहर को तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। जो कुछ उसने देखा था क्या वो सच में उसकी बीवी के साथ हो रहा था? नफीसा तो बहुत अच्छी और नेक थी। उसकी नेकी की तो कोई हर तारीफ करता था। उसने तो कभी कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था जिसकी वजह से उसका ये हाल हुआ हो। वो परेशानी से तड़पने लगा। मेरी बीवी ऐसे कौन से गुनाह की इतनी बड़ी सजा मिल रही है? गोरखन ने कहा, तुम चाबियों का कोई और इंतजाम कर लो। कब्र में चाबियां ढूंढना बहुत मुश्किल है और तुमने खुद ही देखा ना कि इसका यह अजाब खत्म नहीं हो रहा है और वो किस हाल में है। इसकी तरफ से तौबा इस्तगफार करो और अगर ऐसा कोई गुनाह है जो इसने अपनी जिंदगी में किया है तो इसके बारे में पता लगाओ ताकि उसकी मगफिरत हो सके। सभी रोते रोते अपने घर वापस पहुंचा। नफीसा की माँ ने उसे देखा तो कहने लगी, तुम इतनी रात तक कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। साबिर नफीसा की माँ के कदमों में बैठ गया। कहने लगा, अम्मा मेरा चैन सुकून सब लुट गया और अभी भी बुरी तरह से वो कांप रहा था। नफीसा की माँ घबरा गई, पूछने लगी, बेटा बताओ तो सही क्या माजरा है?
तुम इतनी रात तक कहाँ थे? साबिर ने बताया वो चाबियों की तलाश में कब्रिस्तान गया था, लेकिन वहाँ जाकर मैंने जो मंजर देखा उसके बाद शायद मैं सारी जिंदगी सुकून की सांस ना ले सकूं। नफीसा की माँ भी डर गई और कहने लगी, पहेलियां ना बुझाओ साबिर, बताओ तो क्या हुआ है। और फिर साबिर ने रोते हुए बताया कि जब नफीसा की कब्र खोदी गई ताकि चाबियों को तलाश किया जाए, तो कब्र का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। अम्मा, नफीसा जैसी नेक औरत को इतना सख्त अजाब हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। नफीसा के होठों पर आग जल रही थी और वह बुरी तरह चीखें मार रही थी। मैंने आग बुझाने की कोशिश की तो उसके स्याह होंठ नजर आए जो बहुत बड़े हो चुके थे, जैसे लटक गए हों, जबकि बाकी का जिस्म सलामत था। थोड़ी देर के लिए आग बुझी और फिर दोबारा भड़क उठी। पहले तो मैं समझ नहीं सका यह खुदा की तरफ से अजाब है, लेकिन गोरखन ने मुझे बताया कि यह अजाब इलाही है और सिर्फ इसके होठों को जला रहा है। साबिर रोते हुए कहने लगा, अम्मा समझ नहीं आता इसके होठों पर आग क्यों लगी थी। वह तो इन होठों से हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करती थी, किसी की बुराई भी नहीं करती थी। वो अच्छी औरत थी। नफीसा की माँ और उसका शौहर ऐसे ही सारी रात रोते रहे और अल्लाह ताला से नफीसा की मगफिरत के लिए दुआएं मांगते रहे। फजर की अजान हुई तब नफीसा की माँ कहने लगी, मस्जिद के इमाम साहब को खामोशी से सारी बातें बताओ और पता करो क्या मामला है। मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उससे कोई गलती हुई? इमाम साहब बहुत ही नेक और पहुंचे हुए इंसान हैं, यकीनन वो हमारी मदद जरूर करेंगे। साबिर को भी यह बात मुनासिब लगी। इस मसले का अगर कोई हल बता सकता था तो वो इमाम साहब ही थे। साबिर नमाज के लिए गया तो नमाज के बाद उसने मस्जिद के इमाम साहब को रोक लिया और तन्हाई में उन्हें रोते हुए सारी बात बता दी। यह सुनकर वो कहने लगे, मैं नफीसा की माँ से मिलना चाहता हूँ। साबिर इमाम साहब को अपने घर ले आया और नफीसा की माँ से उसकी मुलाकात करवा दी। इमाम साहब पूछने लगे, अम्मा बताओ, नफीसा कहीं किसी की चुगली तो नहीं करती थी या ऐसा कोई गुनाह जो उसके मुंह से होता हो? नफीसा की माँ कहने लगी, नहीं, मेरी बच्ची सिर्फ सिलाई का काम करती थी। उसे इतनी फुर्सत कहाँ कि वो आस पड़ोस में जाए या अपनी सहेलियों को अपने पास बुलाए। फिर यह सुनकर इमाम साहब ने एक ऐसा सवाल किया जिससे नफीसा की माँ चौंक उठी। इमाम साहब ने कहा, क्या नफीसा किसी की अमानत को अपने पास रखती थी, यानी कोई बचा हुआ कपड़ा, कोई जोड़े पर लगने वाली लेस वगैरह? नफीसा की माँ कहने लगी, नफीसा तो बचे हुए कपड़े और धागा वगैरह सब कुछ वापस लौटा देती थी और जो कपड़ा उसे चाहिए होता था वो पूछ कर लिया करती थी। इमाम साहब कहने लगे, सोच लो कि ऐसी गलती हो सकती है जिसकी वजह से उसके मुंह को ही अजाब हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह तो जरूर किया है। अमानतों के मामले में हमें बहुत सख्त सवाल जवाब का सामना होगा। मुझे लगता है कि यहाँ अमानत का ही कोई मामला है, क्योंकि नफीसा बेटी की नेकी से तो मैं खुद वाकिफ हूँ, क्योंकि इमाम साहब भी नफीसा को अच्छी तरह जानते थे। उन्हीं के पास तो नफीसा ने कुरान पाक का हिफ्ज किया था। इमाम साहब कहने लगे, बीवी, फिर भी बेटी की कोई ऐसी बात सोचकर बताओ जो वो किया करती थी और उस आदत का ताल्लुक नफीसा के होठों से हो। नफीसा की माँ बहुत सोच कर कहने लगी, और उसकी उस आदत से मुझे बहुत बड़ी चिढ़ थी। वह कैंची की बजाय अपने मुंह से धागा तोड़ती थी और फिर धागे का जो रेशा उसके मुंह में या होठों पर रह जाता उसे दांतों में चुभा कर अक्सर ही मैंने उसका मुंह जलते हुए देखा है। लेकिन वो बार बार कैंची नहीं उठाती थी, मुंह से धागा खींचकर तोड़ दिया करती थी और फिर उसी धागे को मुंह से चिबाक कर थूक देती थी। बहुत बार मैंने उसे समझाया कि इस तरह होंठ भी कट सकता है, लेकिन वो अपनी आदत में पक्की हो चुकी थी। यह सुनते ही इमाम साहब कहने लगे, तो फिर हो सकता है यह अजाब उसी धागे के जर्रे की वजह से हो, क्योंकि जब नफीसा की मौत हुई थी तो इससे पहले वो सिलाई करती करती उठकर सीढ़ियों की तरफ गई थी। शायद उसकी मौत के वक्त उस धागे का जर्रा उसके मुंह में रह गया हो और उसी धागे की वजह से उस पर अजाब हो रहा हो। सिलाई के बचे हुए सामान के साथ धागे का एक जरा सा भी टुकड़ा उस शख्स की अमानत कहलाता है जो कपड़ों की सिलाई के पैसे देता है। सारी बची हुई चीजों की तरह धागे और दूसरी चीजें भी वापस करना जरूरी होती हैं। बेहतर है कि आप लोग इस तरह से मगफिरत की दुआ करें। और जो लोग भी नफीसा से कपड़े सिलवाते थे
उन सब से बात करके नफीसा की आदत के बारे में बताएं और इसके लिए माफी मांग लें। यह सुनकर नफीसा की माँ बहुत ज्यादा परेशान हुई। बज़ार तो यह बात बहुत मामूली सी थी, लेकिन उसकी वजह से नफीसा को इतना सख्त अजाब होगा यह उनके वहम गुमान भी ना था। फिर नफीसा की माँ ने उन सब लोगों को अपने घर में जमा किया जिनके नफीसा कपड़े सिलाई किया करती थी, और सबको नफीसा की इस छोटी सी आदत का बताकर नफीसा की मग़फ़िरत के लिए हाथ जोड़े। लेकिन यह कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं, इसलिए सबने फौरन माफ कर दिया। कुछ लोगों की नज़र में यह तो गुनाह भी नहीं था, लेकिन जो बात इंसान के नज़दीक मामूली सी होती है, आमाल में वो अक्सर भारी होती है। यहाँ अब यह मामला अमानत का था, शायद इसलिए नफीसा की पकड़ हो गई थी। सब लोग नफीसा की अच्छी आदतों से वाकिफ थे, इसलिए नफीसा को माफ करके चले गए। उसी रात नफीसा की माँ ने अपने दामाद से कहा, साबिर जल्दी से दोबारा चाबियों के लिए तुम उसकी कब्र लाजमी खोदो और अंदर का मंजर देखकर बताओ क्या इस पर अजाब हट गया है। नफीसा की माँ जानना चाहती थी कि उसके अजाब के पीछे असल वजह क्या थी। क्या वाकई एक जरा सा धागा उस पर अजाब की वजह बना था। उस रात साबिर फिर गोरखन के पास गया और उन दोनों ने मिलकर कब्र खोदी तो देखा कि नफीसा की मैयत बिल्कुल ठीक थी। उसके पास से तो खुशबू आ रही थी, किसी किस्म का कोई अजाब बाकी न था, और साबिर की चाबियां भी उसी कब्र में थीं। साबिर ने वो चाबियां वहां से उठाई और कब्र वापस से बंद कर दी और घर वापस आकर नफीसा की माँ को सारा माजरा सुनाया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, उनकी बेटी पर से अजाब इलाही हट गया। और फिर जब यह बात गांव वालों को पता चली तो हर कोई हैरान रह गया कि इस कदर नेकों का औरत और एक अमानत की वजह से अजाब भुगतना पड़ा। सारे गांव वालों ने तौबा इस्तगफार की और फिर सबने अपने मामलात को सुधारने की कोशिश की। उसी दिन के बाद गांव में हर कोई अमानत को लेकर बहुत चखना हो गया। किसी के पास किसी की जरा सी चीज होती तो उसे फौरन वापस लौटाया जाता। नफीसा तो चली गई थी, लेकिन जाते जाते अपनी माँ और सोहर को उदास कर गई थी। वह नफीसा की बेटी और नफीसा का सोहर और माँ तीनों उसे हर वक्त बार बार याद करते। नफीसा तो फूल थी जिसकी खुशबू चारों तरफ बिखरी हुई थी। उसके जाने के बावजूद भी लोग उसे बिल्कुल नहीं भूले थे। वो अपने अच्छे अखलाक और रवैये की वजह से सबके दिलों में आज भी जिंदा है। वो अब जन्नत के किसी आला मुकाम पर होगी। जो छोटा सा गुनाह उससे हुआ था, उसकी सजा वो भुगत चुकी थी। कहने को तो यह सिर्फ मामूली सी बात है कि छोटा सा धागा का टुकड़ा मुंह से तोड़ने पर उसका रेशा मुंह में रह गया, जिससे नफीसा ने चबाकर थूक दिया। लेकिन अक्सर सिलाई करने वाली औरतों के साथ यही मामला होता है। बहुत सी औरतों को मैंने खुद मुंह से धागा काटते हुए देखा है, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि इसकी वजह से भी इंसान को अल्लाह के आगे जवाब देना होगा। यह जरा से धागे का रेशा भी अमानत का एक हिस्सा है और यह मामला कब्र तक जाएगा, और इस जरा सी लापरवाही की वजह से भी अल्लाह का अजाब होगा। इसलिए आज की यह वीडियो हर उस शख्स के नाम है जो सिलाई कढ़ाई का काम करता है। अगर आप भी ऐसी कोई गलती करते हैं तो खुदारा ऐसी कोई गलती ना करें, ईमान में खयानत ना करें, धागे से लेकर बटन तक हर चीज को वापस कर दिया करें। हमें उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी आप लोगों के लिए एक सबक है, और जो लोग अमानत के बारे में मोहताज नहीं रहते वो भी इस कहानी से बहुत बड़ा सबक हासिल करेंगे। मजीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।